Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 11 for business organization and here we will discuss wholesalers and retailers. The topics to be covered are who is a wholesaler, importance of wholesalers, types of wholesalers, functions of wholesalers, services to manufacturers, services to retailers, elimination of wholesalers, meaning and importance of retailing, functions of retailers and itinerant retailers. Now first is who is a wholesaler. Wholesalers are those who happen to be engaged in wholesaling or wholesale trade. In a broad sense, any individual or business firm selling goods in relatively large quantities to buyers other than the ultimate consumers may be called a wholesaler. Wholesalers वो लोग होते हैं जो wholesaling या wholesale trade में engaged होते हैं और कोई भी ऐसा individual या business firm जो कि एक बहुत बड़ी quantity में buyers को goods बेचती है जो कि ultimate buyers नहीं होते लेकिन कोई एक और business होता है या retailers होते हैं उन्हें wholesaler कहते हैं. Thus, manufacturers who sell their products directly to retailers may be regarded as wholesalers. तो वो भी manufacturers जो directly retailers को अपने product बेचते हैं उन्हें भी हम wholesaler कह सकते हैं. Wholesalers act as middlemen between producers or importers of goods on the one hand and retailers or industrial users on the other hand. So wholesalers वो middlemen होते हैं जो producers और importers को goods बेचते हैं और साथ में retailers या फिर industrial users को भी goods बेचते हैं. Then the goods traded by wholesalers may include agricultural commodities, forest products, minerals as well as manufactured goods. Now importance of wholesalers. Manufacturing companies often do not have adequate capital to employ salesmen to contact the large number of retailers. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे ज़्यादातर एडिक्वेट कैपिटल नहीं होता कि वो डायरेक्टली सेल्समैन को एम्प्लॉय कर सके जो कि अलग अलग रिटेलर्स के साथ कांटेक्ट में रहे. सो ज़्यादातर जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं वो अपने बिजनेस रिमोट एरियाज में चलाते हैं और उनको कांटेक्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है. और साथ ही में जो स्मॉल रिटेलर्स भी होते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है और उनके पास मार्केट इन्फॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती. सो होलसेलर्स जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स और स्मॉल रिटेलर्स से रिलेटेड होती है. तो होलसेलर जो है वो सफिशिएंटली लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करते हैं मैन्युफैक्चरर्स के पास ये देखते हुए कि मार्केट की और स्मॉल रिटेलर्स की रिक्वायरमेंट क्या है और इस प्रोसेस में होलसेलर जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे होता है जो कि वो स्मॉल ऑर्डर्स ले सकता है रिटेलर के. सो अ होलसेलर कैन प्लेस सफिशिएंटली लार्ज ऑर्डर्स with the manufacturer keeping in view the requirements of a number of small retailers in his area, and in that process the wholesaler is in a position to meet the small orders of retailers. Now types of wholesalers. Wholesalers अलग अलग टाइप के होते हैं based on merchandise, method of operation and geographical coverage. So merchandise के basis पे हमारे पास तीन टाइप के wholesalers होते हैं, general merchandise wholesalers, general line wholesalers और specialty और single line wholesalers. General merchandise wholesalers are those who deal in two or more unrelated types of products. जो एक या एक से ज़्यादा unrelated type of products में deal करते हैं जो आपस में related नहीं होते. For example, a wholesaler may deal in a number of consumer durables like electrical goods, sports goods, cosmetics, hosiery, etc. So general merchandise wholesalers वो होते हैं जो अलग अलग तरीके के products में deal करते हैं जैसे कि electrical goods हो गए, sports goods हो गए या फिर cosmetics. General line wholesalers are those who carry a number of goods in the same product line. वो होलसेलर जो एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर अंदर रह के गुड्स खरीदते हैं उन्हें जनरल लाइन होलसेलर कहते हैं. जैसे कि कुछ होलसेलर्स होते हैं जो कन्वीनियंस गुड्स खरीदते हैं डेली हाउस होल्ड के जैसे कि सोप्स, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, रेजर ब्लेड्स एक्सेट्रा, तो उन्हें जनरल लाइन होलसेलर्स कहते हैं. देन सिंगल लाइन और स्पेशलिटी होलसेलर्स ये वो होते हैं जो अपने ऑपरेशन को एक नैरो रेंज के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं. So these are the wholesaler who restrict their operation to a narrow range of products or specific products. Wholesalers dealing in a few varieties of textiles
or cloth or carrying varieties of printing paper only may be called specialty wholesalers or single line wholesalers. अब कुछ wholesalers होते हैं जो सिर्फ टेक्सटाइल्स में डील करते हैं या फिर प्रिंटिंग पेपर में डील करते हैं, तो उन्हें हम सिंगल लाइन wholesalers कह सकते हैं. Next is on the basis of method of operation. We have two types of wholesalers, service wholesalers and limited function wholesalers. Service wholesalers वो होते हैं जो कि अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के बिहाफ पे. और लिमिटेड फंक्शन होलसेलर्स वो होते हैं जो कुछ ही लिमिटेड फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, जैसे कि पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग. Then, on the basis of geographical coverage of dealings, we have three types of wholesalers: local wholesalers, district wholesaler, and regional or national wholesalers. Local wholesalers होते हैं जिनके operations जो है एक particular city या town में ही restricted होते हैं, यानी कि एक particular local area के wholesalers जो होते हैं. डिस्ट्रिक्ट होलसेलर्स होते हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रिटेलर्स हैं उनके साथ डील करते हैं. एंड रीजनल और नेशनल होलसेलर्स वो होते हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं, जो नेशनल मार्केट में बिकते हैं या फिर नेशनली एडवर्टाइज होते हैं. एंड दे हैव डीलिंग्स विद रिटेलर्स लोकेटेड इन अ रीजन और अ कंट्री. नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ होलसेलर्स. होलसेलर्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि असेंबलिंग प्रोडक्ट्स, अरेंजिंग स्टोरेज, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, फाइनेंशियल, रिस्क बियरिंग एंड प्राइस फिक्सेशन. नाउ फर्स्ट इज असेंबलिंग प्रोडक्ट्स. होलसेलर का बेसिक फंक्शन होता है कि वो गुड्स प्रोक्योर करते हैं मैन्युफैक्चरर से, उन्हें एक बहुत बड़े स्टॉक में होल्ड करते हैं ताकि वो रिटेलर्स को उनको बाद में बेच सकें. So the basic function of every wholesaler is that of procuring goods from manufacturers and holding large enough stocks for sale to the retailers. This is assembling products. Then arranging storage. Wholesaler जो है वो अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो इतने बड़े स्टॉक को अरेंज कर सके, उन्हें होल्ड कर सके और रिटेलर्स की सारी डिमांड को टाइम टू टाइम मीट कर सके. सो सारी की सारी जो स्टॉक की अरेंजमेंट होती है, उनकी स्टोरेज, उसको होलसेलर्स अरेंज करते हैं. Then grading and packaging. Wholesalers who usually purchase in bulk may have to do the grading of products, that is sort out the products according to quality or size or other factors. And for the convenience, it may also be necessary for wholesalers to undertake packaging of goods. कई बार wholesalers products की grading भी करते हैं, उनकी quality या फिर size के हिसाब से categorize करके, और convenience के लिए कई बार wholesalers जो है packaging भी करते हैं goods की. Then transporting goods. Wholesalers को transportation भी arrange करना पड़ता है ताकि goods गोडाउन से particular जगह पे पहुंच सके या फिर manufacturer से उसके गोडाउन तक जा सके. Then distribution of goods. Goods assembled and held in stock must be made available to the retailers who may be scattered in different parts of a city or region. For this purpose, advertisement and employment of salesmen must be undertaken by the wholesaler. So जितने भी goods assembled होते हैं या फिर stock में होते हैं, उनको एक जगह अवेलेबल करवाने के लिए रिटेलर्स जो हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर करते हैं सिटी या रीजन के, और इस पर्पस के लिए एडवर्टाइजिंग जो होती है वो भी होलसेलर अंडरटेक करते हैं. Then financial function. As a general practice, wholesalers provide credit facility to retailers. रिटेलर्स को उधार पे माल बेचने का काम भी होलसेलर्स का होता है, तो वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. Thus, payment can be made by retailers after goods have been sold by them or when their clients have cleared their accounts. Then, risk bearing. Procurement and holding large stocks of goods in anticipation of demand from retailers involves considerable risk of loss for the wholesalers. If market conditions charge due to reduced demand or entry of competitors, the wholesalers end up with huge unsold stock. कई बार क्या होता है, wholesalers large amount में goods लेके रख लेते हैं, लेकिन अगर goods की क्वालिटी ठीक नहीं है तो customers की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी वजह से wholesalers को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है. और ऐसे ही जब वो रिटेलर्स को क्रेडिट पे कोई गुड्स बेचते हैं तो उस टाइम पे भी उनका पैसा अटक जाता है, जिसकी वजह से उन्हें रिस्क लेना पड़ता है ये. Then price fixation. Prices of goods which consumers have to pay depend upon the prices fixed by wholesalers and charged from retailers.
सो जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के वो भी कंज्यूमर्स जो भी पे करते हैं वो भी होलसेलर्स फिक्स करते हैं और रिटेलर्स उस प्राइस को चार्ज करते हैं. नेक्स्ट इज सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स. अब होलसेलर्स जो है रिटेलर्स को भी सर्विसेज देते हैं और मैन्युफैक्चरर्स को भी देते हैं. नाउ द होलसेलर्स प्लेस लार्ज ऑर्डर्स विद द मैन्युफैक्चरर्स और प्रोक्योर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स. होलसेलर्स जो है वो मैन्युफैक्चरर्स से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स पे गुड्स लेते हैं, तो मैन्युफैक्चरर के लिए ये फायदेमंद होता है. देन होलसेलर्स रिमेन इन क्लोज टच विद द रिटेलर्स. They get regular information from the retailers about changes in the consumer's demand for particular product as also about competing products. So wholesalers हमेशा retailers की टच में रहते हैं, जिसकी वजह से manufacturers को फायदा होता है. wholesalers की वजह से manufacturers को ये पता चल सकता है कि consumer की डिमांड कैसे कैसे चेंज हो रही है और competing products की क्या डिमांड है मार्केट में. Then often the wholesalers place orders in advance on the basis of their expectations regarding future demand of products even though the current demand is low. So wholesalers future demand को देखते हुए और expectations को देखते हुए उसके बेसिस पे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं एडवांस में, चाहे अभी डिमांड कम भी हो. एंड दिस हेल्प्स मैन्युफैक्चरर्स टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन ऑन एन इवन पेस. और इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्शन को जारी रखते हैं. Wholesalers may also participate in the advertising of products jointly with the producers, which is of great advantage to both the parties. Wholesalers कई बार advertising में भी पार्ट लेते हैं, जिसकी वजह से producers और wholesalers दोनों को ही फायदा होता है. Now service to retailers. A variety of goods can be procured by retailers in small quantities from the wholesalers. Most retailers serve a large number of customers. So रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज में होलसेलर से गुड्स खरीद सकते हैं और ज़्यादातर रिटेलर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व करते हैं. इसीलिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो रिटेलर्स स्टोर करते हैं ताकि वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड को मीट कर सके. और इसलिए ये कभी कभी उनके लिए डिफिकल्ट भी हो जाता है कि वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट खरीदें. सो ही कैन ईजिली डू सो बाय कॉन्टैक्टिंग अ फ्यू होलसेलर्स. Then small retailers can get repeated supplies of products from wholesalers. छोटे छोटे रिटेलर्स जो होते हैं उनको रिपीटेड सप्लाई भी मिलती है प्रोडक्ट की, तो इसीलिए दे आर एबल टू रन देयर बिजनेस विद अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल. होलसेलर्स हैव एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स दे डील विद. होलसेलर्स को बिल्कुल पूरी नॉलेज होती है जितने भी प्रोडक्ट्स के साथ वो डील करते हैं. आइटम्स को वो बेस्ट सोर्सेज से प्रोक्योर करते हैं और प्रोड्यूसर्स इजीली उनको बेस्ट क्वालिटी में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में सप्लाई कर सकते हैं. देन रिटेलर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस विच वुड अराइज इफ दे वर टू होल्ड लार्ज स्टॉक्स ऑफ एनी प्रोडक्ट. रिटेलर्स एक तरह से रिस्क से बच जाते हैं जो होलसेलर्स के ऊपर आता है, क्योंकि उन्हें लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. देन मोस्ट होलसेलर्स सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट टू द रिटेलर्स. रिटेलर्स के लिए एक और फायदा होता है क्योंकि होलसेलर्स उन्हें क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई करते हैं, यानी कि उधार पे उन्हें गुड्स देते हैं. और इसकी वजह से जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो भी इजीली अपना काम चला सकते हैं. Generally, retailers come to know about new products or items of trade only through the wholesalers who deal with manufacturers. ज़्यादातर रिटेलर्स को तभी पता चलता है नए प्रोडक्ट्स और आइटम्स के बारे में जब उन्हें होलसेलर्स बताते हैं जो कि उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील कर रहे हैं. तो इस जानकारी के तहत भी रिटेलर्स को फायदा होता है. Then the elimination of wholesalers. Apparently, the wholesalers do not directly serve consumers who need adequate supply of goods at reasonable prices. Wholesalers कभी भी directly consumers को serve नहीं करते. In fact, some people who argue that there is no need of presence of wholesalers in the distribution channel and they should be eliminated. कुछ लोगों को ये भी लगता है कि wholesalers की कोई ज़रूरत नहीं होती distribution channel में और इसलिए उन्हें eliminate कर देना चाहिए. And these arguments are as follows. Like, there are a number of wholesalers who interpose between the producer and consumer, and the price paid by the consumers include the profit margin of these wholesalers, and this leads to higher price of product for the consumer. कई बार ऐसा होता है कि होलसेलर की वजह से जो कंज्यूमर्स प्राइस पे करते हैं उसमें उनका प्रॉफिट भी जुड़ा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है. और इस वजह से अगर हम होलसेलर्स को बाहर निकाल दें तो प्रोडक्ट का प्राइस भी डिक्रीज हो सकता है.
The wholesalers merely act as transfer agents. They do not render any corresponding service for the profits they earn. होलसेलर सिर्फ एक ट्रांसफर एजेंट्स की तरह काम करते हैं, जो उन्हें प्रॉफिट मिलता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो कोई सर्विस नहीं देते एक्स्ट्रा में. The wholesalers hold large stocks. They often manipulate the supply to push up these prices, especially during periods of scarcity. Wholesalers हमेशा ऐसा करते हैं कि वो अपने पास लार्ज स्टॉक रख लेते हैं और सप्लाई कम कर देते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से स्कैरसिटी में प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें फायदा होता है. Then, those who feel that the presence of wholesaler in the distribution channel is of vital importance argue as follows. अब कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि होलसेलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए, जैसे कि होलसेलर्स रिलीव द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड दिस इनेबल्स द मैन्युफैक्चरर्स टू कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी. होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर की एक प्रॉब्लम को दूर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स इजीली अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं. होलसेलर्स मार्केट के ज़्यादा क्लोज होते हैं और इसलिए वो लोकलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. They have good understanding of holding and handling the inventories which involve high investment. So उन्हें एक अच्छी समझ होती है कि कैसे इन्वेंट्री को होल्ड करना है और हैंडल करना है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग. In simple words, retailing refers to all transactions which involve sale of goods to the ultimate consumers for personal consumption. जो एंड यूजर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उनको जब हम गुड्स सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो उसको रिटेल कहते हैं. कोई भी एक ऐसा बिजनेस जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को गुड्स सेल कर रहा है, इस ट्रांजैक्शन को रिटेलिंग कहते हैं. If the buyer uses the goods for reselling purposes, it will not be treated as retailing transaction. अगर बायर अपने यूज के लिए नहीं बल्कि रीसेलिंग के पर्पस के लिए गुड्स को खरीद रहे हैं, तो हम उसे रिटेलिंग ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते. एंड एनी इंडिविजुअल और बिजनेस यूनिट और शॉप primarily engaged in retail selling is known as a retailer or retail store. A retailer is a middleman because retailing involves procuring goods from suppliers and selling them to consumers for their personal use. Retailers जो होते हैं वो मिडलमैन की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो रिटेलिंग के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हैं सप्लायर्स से और उनको आगे बेचते हैं कंज्यूमर्स तक, ताकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए उन गुड्स को इस्तेमाल कर सकें. Retailers perform the very important task of making goods available to consumers, which after all is the objective that underlies the production of goods. Retailers thus form a vital link in the channel or distribution of products. So retailers जो एक बहुत important task perform करते हैं ताकि उन कंज्यूमर्स को गुड्स अवेलेबल हो सके. सो इसलिए जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मेन ऑब्जेक्टिव है उसे खत्म करने के लिए रिटेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ द फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स. रिटेलर्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि डिमांड एस्टिमेट करना. रिटेलर्स चाहे छोटा हो या बड़ा, दे हैव टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ द डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड हैव टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कंज्यूमर नीड टू बी सप्लाइड. सो जो भी डिमांड है प्रोडक्ट्स की, वो रिटेलर्स की वजह से ही पता चलती है कि मार्केट में किसी भी एक प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और कैसे उन्हें सप्लाई करने हैं गुड्स. Then procurement of goods. Most retailers deal in a variety of goods or products, so they may have to procure goods from different wholesalers. Then transportation. Retailers जो होते हैं वही अपने goods के लिए transportation arrange करते हैं कि कैसे wholesaler के place से उनके place तक goods आएंगे. Then storing goods. Small scale retailers जो होते हैं उनके पास limited space होता है goods को store करने के लिए, लेकिन जो large retail stores होते हैं वो अपने godowns में अलग अलग वैरायटी के गुड्स को स्टोर करते हैं. देन ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग. लार्ज स्केल रिटेलर्स जो होते हैं वो गुड्स को सॉर्ट आउट करते हैं उनकी क्वालिटी या प्राइस के हिसाब से, और इसीलिए वो कन्वीनियंस पैकेजिंग भी करते हैं गुड्स की, ताकि कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो सके. जैसे कि फ्रूट वेंडर्स जो होते हैं वो एप्पल्स को कंटेनर्स में परचेज करते हैं, उन्हें उनके साइज के और क्वालिटी के हिसाब से स्टोर करते हैं. और स्पाइसेस जैसे होते हैं वो प्रोक्योर करते हैं वो बैग्स में, जिन्हें फिर बाद में स्मॉल पैकेट्स में जैसे 100 ग्राम्स के या 200 ग्राम्स के पैकेट्स में डिवाइड करते हैं. सो दिस इज ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग विच इज डन बाय रिटेलर्स.
देन रिस्क बेयरिंग, रिटेलर्स भी कुछ रिस्क बेयर करते हैं क्योंकि जो भी गुड्स वो स्टोर में हेल्ड कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, रिटेलर्स उनके लिए रिस्क लेते हैं लॉस का, या फिर अगर उनकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो गई या फिर एक्सपायरी डेट आ गई तो वो सारा लॉस जो होता है वो रिटेलर्स के ऊपर आता है. देन सेलिंग, जो मेन फंक्शन होता है रिटेलर्स का वो होता है गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, उन्हें गुड्स को बेचना. So they have to satisfy the needs and preferences of different types of customers and deal with them tactfully and politely so as to make them regular buyers. Then services of retailers. Retailers कुछ services भी होती है जो consumers को देते हैं, जैसे कि holding ready stocks. जो भी कंज्यूमर की डिमांड होती है उसके बेसिस पे वो अपने पास स्टॉक रखते हैं ताकि रिटेलर्स अलग अलग तरीके के गुड्स कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से उन्हें तभी के तभी प्रोवाइड कर सके. Then display of goods. By displaying goods on shelves or in showcases, retailers bring new products to the notice of customers. कस्टमर के नोटिस में वो प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं और इसलिए वो कस्टमर को इन्फॉर्म भी रखते हैं कि लेटेस्ट वैरायटी की क्या है गुड्स की, और उनकी क्वालिटीज वगैरह और प्राइस वगैरह एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से. Then advice to customers. Very often retailers have to help the customer to make their decision to buy certain goods by advising them on the merits and use particular varieties of products. Then personal services. कंज्यूमर की डिमांड मीट करने के साथ साथ रिटेलर्स उन्हें कुछ और सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी या फिर सेल ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट इज आइटिनरेंट रिटेलर्स. अब रिटेलर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं आइटिनरेंट रिटेलर्स और दूसरे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. आइटिनरेंट रिटेलर्स वो होते हैं जैसे कि हॉकर्स या फिर पेडलर्स, पेवमेंट ट्रेडर्स और मार्केट ट्रेडर्स. फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स. स्मॉल स्केल रिटेलर्स में आते हैं स्टॉल होल्डर्स, जनरल मर्चेंटाइज शॉप्स, स्पेशलिटी शॉप्स या फिर सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स. और लार्ज स्केल रिटेलर्स में आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, मल्टीपल शॉप्स, मेल ऑर्डर हाउस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर बाजार, हायर परचेज ट्रेडर्स, डिस्काउंट हाउसेस एंड ऑटोमेटिंग वेंडिंग्स. नाउ हॉकर्स और पेडलर्स रिटेलर्स वो होते हैं जो डोर टू डोर जाते हैं रेजिडेंशियल लोकेलिटीज में, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यूटेंसिल्स वगैरह बेचने वाले जो होते हैं. पेवमेंट ट्रेडर्स वो होते हैं जो बिजी मार्केट एरियाज में होते हैं या फिर स्ट्रीट क्रॉसिंग पे या फिर रेलवे स्टेशन के पास या बस टर्मिनल्स के पास, जैसे कि कुछ रिटेलर्स होते हैं जो पेन्स वगैरह बेचते हैं या फिर पेन पेंसिल स्टेशनरीज बेचते हैं, जैसे कि पटरी पे जो लगते हैं. और मार्केट ट्रेडर्स होते हैं, ये वो आइटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं जो वीकली मार्केट में या फिर स्मॉल टाउन्स में, विलेजेस में गुड्स बेचते हैं, जैसे कि संडे बाजार होता है, मंगल बाजार होता है, वहां पे जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें मार्केट ट्रेडर्स कहते हैं. देन द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स. स्मॉल स्केल रिटेलर शॉप्स होती हैं जिसके अंदर स्मॉल शॉप्स आती हैं जो मिसलेनियस प्रोडक्ट्स में डील करती हैं जो रेगुलर यूज के लिए चाहिए होते हैं, और जितनी भी शॉप्स जो होती हैं वो अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुड्स सोल्ड द रिटेल शॉप्स में बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. स्टॉल्स ऑन स्ट्रीट्स, जनरल मर्चेंडाइज शॉप्स, स्पेशलिटी शॉप्स एंड सेकेंड हैंड गुड्स सेलर्स. स्टॉल्स ऑन स्ट्रीट्स होते हैं जो वेरी कॉमन होते हैं सिटीज में और टाउन्स में. ये सेटअप होते हैं स्टॉल्स लार्ज स्टोर्स के आगे या फिर रेजिडेंशियल एरियाज में जो लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जैसे कि स्टेशनरी, ग्रोसरी, टॉयलेट प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा. फिर है जनरल मर्चेंडाइज शॉप्स. ये होती हैं स्मॉल रिटेल शॉप्स जो कि डील करती हैं जनरल कंज्यूमर गुड्स में, रेगुलर यूज के जो होते हैं, जैसे कि प्रोविजंस, ब्रेड, बटर, स्टेशनरी एक्सेट्रा. ये शॉप्स लोकेटेड होती है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज्यादा होता है या फिर बिजी मार्केट में. कंज्यूमर्स को बहुत कन्वीनियंट लगता है इन शॉप से गुड्स खरीदना क्योंकि सारी उनकी रिक्वायरमेंट की चीज एक जगह पे मिल जाती है. रेगुलर बायर्स जो होते हैं उन्हें होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करती हैं ये शॉप्स. देन स्पेशलिटी शॉप्स. स्पेशलिटी शॉप्स वो होती हैं, ये भी स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स होती हैं जिसमें एक या एक से दो स्पेशल टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं.
जैसे कि मेडिसिन के लिए केमिस्ट शॉप्स होती हैं, या फिर मोटर पार्ट्स की शॉप्स होती हैं, बुक्स और स्टेशनरी होती हैं, इन्हें स्पेशलिटी शॉप्स कहते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स सेलर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये वो होते हैं जो सेकेंड हैंड सामान बेचते हैं, जैसे कि सेकेंड हैंड बुक्स वगैरह हम बेच सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं। तो वो जो स्टेशनरी शॉप्स होती हैं जो सेकेंड हैंड सामान बेचती हैं, बुक्स बेचती हैं, उन्हें सेकेंड हैंड गुड्स सेलर कहते हैं। देन आर दी लार्ज स्केल रिटेल शॉप्स। लार्ज स्केल रिटेल शॉप्स को हम लार्ज स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बिजनेस होता है। द टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप्स इन दिस कैटेगरी इंक्लूड डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर, मेल ऑर्डर हाउस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, हायर परचेज ट्रेडर्स एंड डिस्काउंट हाउसेस। Now here are some questions for you. What do you understand by wholesaling? How does it differ from retailing? Discuss the importance of wholesalers in marketing manufactured goods. That's all for this session. Thank you and have a nice day.